Hello, can you hear me? Yes, sir. So yesterday we were discussing this classification of manufacturing operations. Okay, so we discussed what is basic process operation. Yeah. Hello, hello. I am audible, no? Yes, sir. Yeah. So we discussed basic process operation, principal process operation, hmm, then what is major process operation, then auxiliary process operation, and supporting process operation. Hmm. So the assignment will be like this. This is how you have to submit. Like you have been given a drawing, a component. Okay, so you have to start like this. So let us take an example of say transvarying cage. So for the transvarying cage, now what you have to write here, basic process. So you have to write basic process as casting. Then principal process is cutting. All right. So forming, nil. Then principal process is not casting. Principal process is cutting. So here again you will write nil, and here again you will write nil. Matlab you have to write assembly dash nil, casting dash nil, and forming dash nil. Like that you have to write. Then the first operation is a receiving inspection. So what you have to write here, you have to show this arrow and you have to say receiving inspection. Now this receiving inspection either you can write here in a rectangle, but what I prefer normally that you should write here receiving inspection in the circle, and then outside the circle you have to write inspection. Receiving inspection is a supporting operation. Now first I will explain this what they have given here. Like new receiving inspection, uh, this is your supporting operation. uh, then you are machining the sides, squares. So that is your qualifying operation. Means what, some drilling operation is to be done. Now qualifying operation is a part of the major process area, isn't it? We have seen this. We have seen this. See, first is your basic process, then second is your principal process, then third is your major process. So in major process you have uh, product critical, process critical, then you have secondary, and qualifying and re-qualifying, like that. And then next operation, fourth operation is your auxiliary process, and fifth operation is your supporting process, right? Then now, uh, so so now here qualifying operation is a part of the major process area, isn't it? Like this now. Here, product critical areas and process critical areas, they are the part of the major process. So you identify that in cutting, you identify that turning is a major process operation, and in that now you have a qualifying operation, right?
Then next is another critical operation. So that is say process operation. That is what you have to either write a number here, or instead of number, I suggest that you write that operation. Okay. Then you say inspection. Okay. So inspection is a supporting operation over here. Hmm. Then whatever maybe say drilling, so that is your, here you have to write in the circle, you have to write drilling, so that is your secondary operation. Okay. So now again here tapping, so that is your secondary operation, either to write here or here depending upon the space. Hmm. Then it goes to the heat treatment. Okay, so the arrow, see, this all this arrow indicates the material handling. Hmm. So now here the material goes for the heat treatment. All right. So that is your auxiliary operation, and then it comes here. Uh, Okay, so that is mm, again auxiliary operations, and this arrow indicates the material handling. Then requalifying operation. As I told that after heat treatment, you will always have a requalifying operation. That is your straightening. That may be cleaning of the centers, then straightening. That is your requalifying operations. Then you have again a critical operation, like say you may be having say product critical operations or something like that. So that operation you have to write here, and besides you have to write critical operation. Then you have inspection, which is nothing but the supporting operation. Then you have uh, plating, so that is your, it goes, material goes to the plating, so that is your supporting operation. Then again from plating it comes, and then final inspection, that is again supporting operation. Then you have packaging, so packaging is also supporting operation, and then shipping, that is delivery, so that is again a supporting operation. So here now this is your entire thing. This is your material handling. Huh? That is your material handling. Now let us talk about. I will give you clues for the. I will give you clue for transbearing cage. That is how you will do it for the transbearing cage classification of operation. Now listen carefully. Any other members want to join?
Sir, mic is off, sir. Sorry. So I am giving you oral solution. I am purposely not giving in writing, so that you understand. You write. You have your understanding and then write. So here, what you write here first in the rectangle. First title will be transbearing cage. Then you write here casting. Classification of operation for transbearing goods. You write casting here. Then next to that you write basic process operation. Because casting it is giving you the shape. Then next arrow करने का casting के बाद then you write cutting. Then you cutting लिखने का and then just next to the cutting you have to write principal process. There is a chain. It is not exactly right. So again in a rectangle write a rectangle, inside the rectangle write casting, then next to that you write basic process operation, then इसके नीचे again in a rectangle write cutting, then बाजू में you write principal process operation. Now in cutting again arrow, then now you will say turning, isn't it? So turning, that is major process operation. Turning major process operation. Okay. So now again arrow. Okay. Now you draw a circle and in circle you write the operation number 10. Okay. Operation number 10. Right. Now you have two sides here. One is left hand side and another is right hand side. So left hand side where you have to identify in major process operation which type of operation, and right hand side where you write that what is that operation, because in a circle you will not be able to write, isn't it? In a circle you will Repeat not... करो क्या मतलब कैसे? हाँ हाँ Repeat करो. हाँ repeat करता हूँ. Let me open the drawing, the transbearing case first, so that you understand it very well. Last. The transbearing cage where it is? Sir, assignment नीचे है क्या? Assignment. Where? इसमें वर्कपीस कंट्रोल एंड टॉलरेंस चार्ट में भी इसमें नहीं सर, नीचे उसके नीचे वाले नहीं यहाँ पे भी नहीं. सर कंप्लीट द वर्कपीस कंट्रोल के ऊपर मशीनिंग टाइम कैलकुलेशंस में है क्या? इसमें मैंने दिया था ना ट्रांसफरिंग केज का, तो ड्राइंग इज देयर नो. हाँ सर, ड्राइंग तो है सर. रेफर असाइनमेंट्स ऑन पार्ट प्रिंट एनालिसिस ऊपर है ना, वहाँ पर होगा. हाँ इसमें वहाँ पे किधर गायब हो गया? और इंडेक्स शीट दैट स्टार्ट से एक एक चेक करो.
इंडेक्स शीट, रेयर एक्सेल ट्यूब इसमें नहीं है सर। इसमें नहीं है बराबर। कैम डिजाइन में भी नहीं है, इसमें हो सकता है। इसमें भी नहीं है। नहीं, इसमें भी नहीं है सर। मशीनिंग टाइम इसमें भी नहीं है। यूटी ऑन असाइनमेंट कंप्लीट द वर्कपीस कंट्रोल इसमें भी नहीं है ना। देखो एक बार सर। नहीं सर। कंप्लीट द पार्ट फिट एनालिसिस यहाँ पे एक बार नहीं है इसमें भी। सर मुझे मिल गया। किधर है सर आप स्ट्रीम में जाओ, स्ट्रीम में। किसमें स्ट्रीम स्ट्रीम। स्ट्रीम स्ट्रीम हाँ हाँ क्लास वर्क के बाजू। हाँ अभी एकदम नीचे जाओ। हाँ, अभी इंट्रोडक्शन ये जो था वो थर्ड वन, यूज दिस लिंक फॉर पीटी के ऊपर थर्ड वन, थर्ड दिस वन। ये यूट्यूब लिंक्स के नीचे, यूट्यूब लिंक्स के नीचे। हाँ, यहाँ पे है ट्रांसफर। yes. So now let us do classification of operation for this. So first is you will write casting. Okay, so castings के लिए बाजू में लिखने का basic process operation. Then arrow draw करो, ठीक है. Then again rectangle, उसमें आप लिखने का है cutting, that is principal process. Then cutting के बाद you will write now again a rectangle. रेक्टेंगल में टर्निंग लिखो और देन बाजू में लिखो मेजर प्रोसेस ऑपरेशन, ठीक है. नाउ इसमें इन मेजर प्रोसेस ऑपरेशन नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई 4 ऑपरेशंस. वन इज योर कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल, प्रोडक्ट क्रिटिकल, देन क्वालिफाइंग एंड रीक्वालिफाइंग. अभी ये 3 जो बोला वो इतना समझ में आया? हेलो. हाँ सर. हाँ हाँ. तो नाउ थर्ड इज व्हाट? इन अ रेक्टेंगल यू हैव रिटन in a rectangle you are written turning, okay, and बाजू में लिखा है measure, okay. So now वापस एरो निकालो. नाउ सर्कल निकालने के बाद उसमें आप ऑपरेशन नंबर 10 ऐसा लिखो, ऑपरेशन नंबर 10. अभी उसके बाजू में यू हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिकॉज यू आर राइटिंग इन द सेंटर, बराबर ना. सेंटर में आपने पहला एक रेक्टेंगल बनाया, ओके. देन कास्टिंग बेसिक प्रोसेस, देन उसके बाद उसने लिखा कटिंग प्रिंसिपल प्रोसेस, देन उसके बाद लिखा टर्निंग. वो डायग्राम साइड बाय साइड निकाल के एक बार दिखा दो ना, समझ जाएगा. ठीक है. सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो अभी ये जो ये बाजू का वगैरह सब भूल जाओ. So you only remember now this एक rectangle, the arrow, other rectangle, फिर arrow, then another rectangle cutting, उसमें आप टर्निंग लिखने का और देन मेजर प्रोसेस इतना लिखना, ठीक है. ये जो है ना ये Alright, so अभी next is now you are drawing a circle. उसमें आप this is the now fourth step, बराबर है ना. कास्टिंग हो गया, then cutting हो गया, then turning हो गया. Now this is the fourth step. तो fourth step में आप लिख रहे हैं 10, हाँ.
सो अभी यहाँ पे ये पूरा खाली है, बराबर ना, नथिंग इज देयर। हाँ, सो ऑपरेशन नंबर 10, तो ऑपरेशन नंबर 10 में अपना क्या कर रहा है हम लोग, यहाँ पे वी आर होल्डिंग इट हियर सेटअप 1 में, लोकेटिंग यहाँ पे, एंड देन वी आर डूइंग ऑल दिस टर्निंग, बराबर ना, ये डायमीटर, दिस डायमीटर, दिस डायमीटर, दिस डायमीटर, ये पूरा बोर कर रहा है और ये फेस कर रहा है, एम आई राइट? सो आपको यहाँ पे ऐसा यू हैव टू राइट इन वन सेंटेंस, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है ऑपरेशन नंबर 10 या। तो यहाँ पे जस्ट लिखो, बाजू में लिखो कि टर्न, हाँ, ऐसा सब होल्ड लोकेट वगैरह वो सब छोड़ने का, ओनली यू हैव टू राइट टर्न डायमीटर 125, देन डायमीटर 100 एंड डायमीटर 75, बस इतना ही लिखो। आई विल रिपीट हियर एंड दैट यू कैन राइट वेरी इजीली, आपके पास जगह है, बराबर है। सो हियर लेट अस से ऑपरेशन नंबर 10 में आप लिखने का ओनली दिस 1 2 एंड दिस 3, बाकी का सब अंडरकट वगैरह मत लिखो, ठीक है। सो टर्न डायमीटर 100, देन टर्न डायमीटर 75 एंड टर्न डायमीटर 125। हालांकि ये ऑपरेशन में वी आर डूइंग ऑल दिस फेसिंग ऑल्सो, दिस ऑल्सो, बराबर है। सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, अभी देर आर टू थिंग्स, प्रोडक्ट क्रिटिकल एरिया एंड प्रोसेस क्रिटिकल। सो प्रोडक्ट क्रिटिकल एरिया मतलब बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री। सो ऑल दीज ऑपरेशंस अभी सबको टॉलरेंस है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव टू राइट, आप आइदर यू कैन राइट दिस ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप ऑपरेशन का नाम लिखो, कैसा भी, इट डजेंट मैटर। सर मतलब वो जो सर्कल होगा उसके अंदर हम लोग ऑपरेशन 10 का सर 10 लिखेंगे। ऑपरेशन 10 बिकॉज उसमें आप वो क्या, वी कैनॉट राइट कंप्लीट थिंग, नो। सो Yes, sir. ऑपरेशन नंबर 10, सो आइदर सी देर आर टू थिंग्स, सी अगेन आई एम मॉडिफाइंग, मेकिंग द लाइफ इजी। तो आइदर यू राइट सप्लीमेंट्री पेज, मतलब इसमें आप सप्लीमेंट्री पेज भी अटैच कर सकते हो। तो 10 के बाजू में यू जस्ट राइट ऑपरेशन, और जो सप्लीमेंट्री पेज जो सेकेंड पेज है ना, वहाँ पे आप लिखो ऑपरेशन नंबर 10 में क्या क्या है, ऐसा भी कर सकते हो। और इफ यू वांट टू, सर हाँ, इफ यू वांट टू लिखना क्या है? अकोमोडेट ऑन वन पेज, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू अकोमोडेट ऑन वन पेज, दिस इज व्हाट आई प्रीफर, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन में भी आपने को ऐसा ही लिखना है। मतलब ऑपरेशन नंबर 10 क्या है कि यू आर डूइंग दिस ऑपरेशन नंबर 10 में एक्चुअली बहुत कुछ है, मतलब यू आर होल्डिंग हियर, यू आर लोकेटिंग हियर, यू आर क्लैंपिंग हियर, करेक्ट नो, देन यू आर टर्निंग दिस अंडरकट वगैरह वो सब नहीं लिखने के। इफ यू आर राइटिंग हियर, देन यू जस्ट राइट turn diameter 125, then turn diameter 100 and turn diameter 75। इतना क्लियर हो गया? पर सर वो मेजर प्रोसेस वो जो वो कौन सा ऑपरेशन है, नहीं, क्रिटिकल वही प्रोसेस वही अभी क्रिटिकल वही बोल रहे, वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है वो लिखो, अंडरस्टैंड? ओके ओके, अभी यू हैव टू आइडेंटिफाई, अभी ऑपरेशन नंबर 10 में आप क्या क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा है एकदम ब्रीफ में, ठीक है, राइट हैंड साइड में। इफ यू वांट टू राइट इन डिटेल, तो आपने इधर ऑपरेशन नंबर 10 दिया है, isn't it? So what is the purpose of that? So for that what I am telling, you can add one more page in the assignment, और वहां पे आप ऑपरेशन 10 में पूरा डिटेल लिख दो, रामायण पूरा जो भी लिखना है वो, सेपरेट पेज के ऊपर। इज दिस क्लियर? अभी पर लेफ्ट सर हैंड, एग्जाम में जैसे लिखने वाले हाँ, वैसा ही एग्जाम में जैसे लिखने कैसा है कि बस इतना ही, हाँ, बिकॉज दिस विल बी फॉर द 10 मार्क्स, तो इतना जरूरत नहीं है, समझा ना, 7 to 10 मार्क्स रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट, the marks will be, so but maximum sir, will be 10 and अभी minimum will be this thing, हाँ। सर वो तो हमने अभी ऑपरेशन 10 में टर्न डायमीटर 125 लिखा, बाद में हाँ जो भी डायमीटर्स टर्न करने थे, बोर करने थे, वो सब लिखे, बराबर। हाँ हाँ तो अभी वो एक ऑपरेशन मैंने लिखा 125, तो 125 को टॉलरेंस दिया है, तो फिर उसको भी मैं राइट साइड में ब्रैकेट में लिखूंगा क्या कि वो हाँ, प्रोसेस एक क्रिटिकल मिनट, एरिया है कि प्रोडक्ट क्रिटिकल एरिया है? हाँ वही लिखना है अभी यहाँ पे। अभी आई विल जस्ट, वेयर इज माय दिस थिंग वन,
किधर गया, इधर जाओ ड्राइंग। हाँ, वही तो ड्राइंग। तो बच्चे लोग बीच में ज्वाइन करते तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। सर फिर से वो ड्राइंग नहीं खोलना पड़ेगा ये हाँ वही, एक्रो। डाउनलोड्स में जाके to हाँ सर वो नोट्स में ही ट्रांसफेरी केस था ना सर सामने अभी पीछे गए आगे जाओ। हाँ वो देखो ट्रांसफेरी। हाँ, थैंक यू। सो नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज मेजर, सॉरी वेदर इट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस, qualifying or requalifying. अभी बोलो, you have written here turn diameter this, turn diameter this, and sorry bore diameter this and bore diameter this. अभी इसमें से कौन से है? So is it a product critical operation? Yes, because it is, there are tolerances, close tolerances are given. Correct? Is it a process critical operation? Yes, because why process critical operation? Because this bore is important and that is to be taken for uh, drill location, your drill jig location. Is it a qualifying operation? No. Huh? Is it a requalifying operation? No. So the left hand side में you have to simply write product critical operation and process critical operation. Is it clear? This is the fourth step. फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सर मतलब राइट हैंड साइड में ऑपरेशन और उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसी लाइन में प्रोडक्ट क्रिटिकल प्रोसेस क्रिटिकल ऐसे कॉमा डाल के लिखो। बस product critical operation and process critical operation, because this operation is both product as well as process. तो सर वो रिसीविंग इंस्पेक्शन हीट ट्रीटमेंट वो सब वहाँ पे नहीं आएगा। नहीं, वो अभी मैं बोलता हूँ, ये हो गया, अभी इतना हो गया। ठीक है, तो इसके पहले, हाँ, इसके पहले इफ यू वांट नाउ सी, हम लोग कास्टिंग चालू किया, बेसिक प्रोसेस ऑपरेशन, उसके बाद हम लोग क्या लिखा, हाँ, सो बेसिक प्रोसेस के बाद देयर विल बी ऑलवेज अ रिसीविंग इंस्पेक्शन। सो और एक रेक्टेंगल डालो, रिसीविंग इंस्पेक्शन, और उसके बाजू में लिखो सपोर्टिंग ऑपरेशन। देन यू राइट कटिंग, देन उसके बाजू में लिखो प्रिंसिपल प्रोसेस, देन यू राइट टर्निंग, उसके बाजू में लिखो मेजर major operation, and then you write operation number 10. Is it clear? Okay, hello. ओके सर। हाँ और सर हाँ हाँ ऑपरेशन 10 में ही वो सारे ऑपरेशन 10 में ही वो सारे ऑपरेशंस आएंगे राइट हाँ 125 में हाँ 100 बराबर। एमएम। हाँ बराबर, अभी इधर 10 क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये 10 में बहुत सारा कर रहे हैं हम लोग, बराबर ना? वी आर डूइंग नॉट मेनी ऑपरेशंस, अंडरस्टैंड नो? दैट्स व्हाई वी आर गिविंग 10, so that if anybody want to write it on a separate page, he can write it on a separate page, operation number 10 इसके लिए। ओके There is, it is not, see, if you are writing here on the right hand side, then it is not required also. I hope I am not confusing. तो 10 लिखने का जरूरत भी नहीं है। मतलब यू डोंट टेल मी सर आप 10 लिखने को क्यों बोल रहे थे और अभी बोल रहे मत लिखो। सी, इफ यू आर राइटिंग हियर, if you are describing operation on the right hand side, then there is no need to write operation number. If you don't want to write here, if you want to write explicitly, then you write operation number 10, और ये यहाँ पे जो खिचड़ी होएगा, in order to avoid that खिचड़ी, you write it on a separate page. ऐसा मैं बोल रहा हूँ। Is it clear? Okay. Then तो फिर अगर वो सेपरेट पेज पे लिखा ना तो फिर यहाँ पे हम ये नहीं लिख पाएंगे वो प्रोसेस क्रिटिकल कौन सा है और नहीं, वो प्रोडक्ट लिखना है, क्रिटिकल नहीं कौन सा है नहीं फिर नहीं, वो भी वो सेपरेट पेज पे ही लिखना नहीं नहीं नहीं, वो तो बाजू में ही लिखते हैं। और क्लासिफिकेशन, सी द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑपरेशन। तो ये जो बेसिक प्रोसेस, मेजर प्रोसेस को आइदर ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। इट इज नॉट ऑन द सेपरेट पेज। सेपरेट पेज के आप ऊपर यू कैन ओनली राइट ऑन द ऑपरेशन डिटेल्स। तो फिर अगर इधर ऑपरेशन तो 10 लिख के राइट साइड में कुछ हाँ, नहीं लिखेंगे ना नहीं, तो फिर ऑपरेशन 10 इधर हम यू जो राइट ऑपरेशन 10 और बाजू में लिखो ना प्रोसेस क्रिटिकल ऑपरेशन एंड ये प्रोडक्ट क्रिटिकल ऑपरेशन, एंड देन ऑपरेशन 10 पर नंबर वो है कौन सा होगा वो नहीं पता चलेगा। वो ऑपरेशन नंबर 10 यू आर राइटिंग ऑन अ सेपरेट पेज नो, तो एग्जामिनर हैज टू सी द सेपरेट पेज। वो थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, इसके लिए बाजू बाजू में लिखा है तो इट इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। शॉर्ट अंडरस्टैंड फॉर्म नो? में लिखेंगे तो हो जाएगा ना यस टर्न यस सर, डायमीटर 125 बस इतना ही। बस बस हाँ, यस, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है।
पूरा इधर ये नहीं करना, अदरवाइज इट विल ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस एंड इट विल लुक बैड। ओके, देन इसके बाद ओके सर। ऑपरेशन नंबर 10 के बाद नाउ अगेन यू शो एरो, एरो इंडिकेट्स मटेरियल हैंडलिंग। नाउ हियर इफ यू वांट टू ऐड इंस्पेक्शन, यू कैन ऐड इंस्पेक्शन, बराबर ना। मतलब ऑपरेशन नंबर 10 में जो जो आपने किया है, ये डायमीटर किया है, ये बोर किया है, ये बोर किया है, सो दैट इज टू बी इंस्पेक्टेड, इजंट इट? सो यू कैन ऐड हियर, बराबर, इंस्पेक्शन, एंड देन उसके बाजू में लिखो इंस्पेक्शन इज अ सपोर्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, रेक्टेंगल में लिखना है। देन अगेन एरो, ओके, देन सर्कल, अभी सर्कल में आप ऑपरेशन नंबर 20 लिखो, ठीक है। अभी क्योंकि सी इंस्पेक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग विल कम एट एवरी स्टेप, बराबर ना। एक सेटअप 1 का आपने ऑपरेशन किया, सो दैट हैज टू बी इंस्पेक्टेड, नॉट 100%, लेकिन सैम्पलिंग तो कुछ करना पड़ेगा, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, करेक्ट ना। अगर 10 पीस 10% तो करना ही पड़ेगा ना, 100 में से 10 पीस तो चेक करना ही है अपने को। So this inspection and material handling will always come. Material handling queue, because from machine, like setup 1 you are doing on one machine and setup 2 you are doing other machine. So in between you will have material handling, बराबर ना, दो लेथ मशीन। तो उसके बाद आप ड्रिलिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो अगेन यू विल हैव मटेरियल हैंडलिंग। तो ड्रिलिंग के बाद यू आर टेकिंग इट नॉट मिलिंग, सो अगेन यू विल हैव मटेरियल हैंडलिंग। तो वो तो रहेगा ही, करेक्ट ना। So that material handling you don't have to write every time. So you can simply draw here. अभी ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप खाली ऐसा एक एरो ऐसा ऐसा निकालने का, this arrow, it means this arrow indicates material handling, बस। तो everywhere you don't have to write material handling। So आप खाली एक ऐसा एरो निकालो, तो एरो indicates the direction of the material handling, that's all। Then let us go to the operation number 20। तो in between आपने inspection डाल दिया। अभी operation number 20 में क्या है, you are holding on this, you are locating here, okay, and then you are doing facing and this turning and this radius, बराबर है। अभी इसमें से which operation, this is the operation, बराबर है। तो यहाँ पे अभी operation number 20 में आप लिखो turn dia 100, comma 10R, बराबर है, and face F5, फेस F5, हो गया। 5 to 6 words, I repeat, turn diameter 100, then face F5 and turn radius 10R, and also face this F4। So again I write turn diameter 100, turn 10R, face F5 and face F4। अभी इसमें से which one is product critical area and which one is process, which one is qualifying, which one is requalifying। तो अभी इसमें प्रोडक्ट क्रिटिकल ऑपरेशन तो कौन सा भी है ही नहीं, बराबर है, बिकॉज 100 के ऊपर भी टॉलरेंस नहीं है, आपका 60 के ऊपर भी क्लोज टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस नहीं है मतलब 0.05 के अंदर है, सो देन दैट इज टेकन एज द प्रोडक्ट क्रिटिकल। तो प्रोडक्ट क्रिटिकल गया एक का पत्ता कट करने का, ठीक है। अभी सी प्रोसेस क्रिटिकल मतलब अभी ये जो 4 मैंने बोला, F4 फेसिंग F4 फेसिंग F5 टर्न 100, एंड इसमें से कौन सा भी इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अनदर प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस, बोलिए। नहीं, नथिंग। सर ड्रिलिंग में हो रहा है और मिलिंग में हो रहा है ना। नहीं, ड्रिलिंग के लिए भी वी आर लोकेटिंग ऑन दिस पेज, रिमेम्बर F1 के ऊपर हम लोग लोकेट कर रहे हैं ड्रिलिंग के लिए, इवन मिलिंग के लिए ऑल्सो हम लोग F1 के ऊपर क्यों लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अपना ड्रिल लेंथ है वो कम हो जाएगा, बराबर, छोटा हो जाएगा, और मिलिंग इसके लिए। सो इवन दिस इज नॉट एक्टिंग, दिस फेस F5 इज ऑल्सो नॉट एक्टिंग एज अ रजिस्टरिंग सरफेस फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस, फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। आगे का प्रोसेस के लिए इसका कुछ काम है ही नहीं, ओके। सो देयर इज नो प्रोसेस क्रिटिकल। क्वालिफाइंग, इसका रेफरेंस लेके हम लोग कुछ डीलिंग बिलिंग कुछ मार्किंग वगैरह करने वाले हैं क्या? नहीं। रिक्वालिफाइंग, नहीं, ओके। सो यू कैन सिंपली राइट हियर, क्या लिखेंगे हम लोग? नाउ दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी ऑपरेशन, बराबर है, बिकॉज दिस इज नॉट important। Then again you will have arrow, then let us say operation number 30। अब ऑपरेशन सर नंबर सर सर बोलो। ऑपरेशन 20 में
हाँ, ऐसा कौन सा भी वो मेजर ऑपरेशन के 4 टाइप्स में से कुछ भी नहीं है, कुछ भी राइट? नहीं है. So तो सर that's why it becomes secondary operation. तो उसको मतलब ऐसे ब्रैकेट में सेकेंडरी ऑपरेशन सेकेंडरी, ऑपरेशन हाँ, लिखना है बस। सेकेंडरी ऐसा लिखने का. ओके. ओके। Because it is not important, no. Sometimes even I will tell you, I don't want to confuse you. Even this machining of 10 radius is also not important, क्योंकि ये as cast रखेगा तो भी चलता है. Understand, no? ये किधर फिटिंग में आएगा ही नहीं. ओनली दिस फेस हैज टू बी मशीन एंड दिस फेस हैज टू, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोल्ट आने वाला है ना, इधर बोल्ट हेड बैठेगा. सी दिस इज गोइंग इनसाइड द हाउसिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ऐसा हाउसिंग में जाएगा और यहाँ पे आपका बोल्ट आएगा, बराबर है. तो बोल्ट का हेड है वो इसके ऊपर बैठेगा. सो दैट्स व्हाई दिस मशीनिंग इज रिक्वायर्ड. सो दिस रेडियस मशीन नहीं करेगा तो भी चलता है. अंडरस्टैंड? यस सर। ओके. सो नाउ विल गो फॉर, नाउ अगेन दे विल बी, हाँ, अगर इंस्पेक्शन का जरूरत है तो लिखो, हाँ, इंस्पेक्शन. अदरवाइज यू कैन स्किप द इंस्पेक्शन. देयर विल बी मटेरियल हैंडलिंग. नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज योर मिलिंग और ड्रिलिंग. बोलो, कल मैंने बोला था. सर पहले तो मिलिंग होगा, बाद में हाँ, ड्रिलिंग। या करेक्ट. First will be milling. So because for the drilling you need to have reference of these two sides, correct? No, because the drilling has to be at 45 degree. Okay. So first operation, now operation number 30 will be, you are just writing 30. So आपको क्या लिखना है? वो locate pocket वगैरह कुछ नहीं लिखने का. You have to simply write mill 4 sides. That's all. Mill 4 sides. To maintain 140 ये वगैरह कुछ नहीं. So mill 4 sides. कौन सा machine वगैरह nothing. So operation number 30, because you have to write in very short. If you want to write describe explicitly, then आप next page पे लिखो. So operation number 30 will be mill 4 sides. ठीक है. Now अभी mill 4 sides. It will come under what? Which category? सर वो ये It is going to be a क्वालिफाइंग qualifying. ऑपरेशन में। हाँ, so you can write here 30 milling 4 side. will ये milling mill 4 side लेफ्ट हैंड साइड में लिखो और राइट हैंड साइड में लिखो मेजर प्रोसेस ऑपरेशन एंड ब्रैकेट में लिखो क्वालिफाइंग ऑपरेशन और सिंपली राइट क्वालिफाइंग ऑपरेशन. ठीक है. इट इज अंडरस्टूड. क्वालिफाइंग ऑपरेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेजर प्रोसेस. ऑलराइट. यस सर। ठीक है. सो ये 30 हो गया. ओके. सो उसके बाद 30 के बाद क्या, यू डू यू वांट टू ऐड इंस्पेक्शन? आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन. सर सिर्फ बॉक्स में इंस्पेक्शन ऐसे लिख दिया तो नहीं. इनफ तो हो गया, राइट? हाँ, तो अभी इसमें क्या करने का, एक बॉक्स निकालने का रेक्टेंगल 30 के बाद में. ओके. और उसमें लिखो इंस्पेक्शन और यू कैन राइट हियर 10% करके लिखो. 10% या 20% लिखो. एंड देन साइड में यू हैव टू राइट सब. इफ यू आर रिटर्न इंस्पेक्शन देन साइड में आपको सपोर्टिंग ऑपरेशन करके लिखना ही है. खाली मटेरियल हैंडलिंग हम लोग ऐसा निकालते हैं बिकॉज देर इज नो स्पेस. मटेरियल हैंडलिंग हम लोग ऐसा एरो निकाल के मटेरियल हैंडलिंग निकालते हैं. ठीक है. अभी देन 40. सो 40 जस्ट राइट 40 एंड जैसे देन से ड्रिल. ड्रिल जो डायमीटर कितना है इसका 4 होल्स. 10 डाया. सो ओनली ड्रिल 10 डाया कितना लिखेगा, दैट इज ऑल्सो इनफ. ड्रिल 10 डाया होल. ओके. और अभी दिस इज व्हाट ड्रिल 10 डाया होल. वेदर इट विल बी, बोलो किसमें आएगा? सेकेंडरी ना. ड्रिलिंग इज ऑलवेज ड्रिलिंग टैपिंग इज ऑलवेज सेकेंडरी ऑपरेशन. सो यू से ड्रिलिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ड्रिल 4 होल्स, और राइट हैंड साइड में यू राइट secondary operation. Then you can write. सर कैन यू रिपीट दिस, कनेक्शन वाज लॉस्ट। हाँ, 30 हो गया. मिलिंग हो गया. मिल 4 यस तक. यस। देन उसके बाद एरो निकालो. देन बॉक्स निकालो. बॉक्स में आप इंस्पेक्शन डाल दो. उसमें आप 25% लिख दो. बिकॉज इसमें मिलिंग में आप खाली देखो, 100 पीसेस में से 25% नहीं 5% लिखेगा तो भी चलेगा. 100 में से 5 पीस चेक करेगा तो भी चलेगा. बिकॉज वॉट यू हैव टू चेक हियर 140 बाय 140, वो भी ओपन साइज है, बराबर ना. वो अन्य से चेक करना है. एंड यू हैव टू जस्ट सी वेदर इट इज राइट एंगल. इंजीनियरिंग स्क्वायर से चेक करना है, बराबर है ना. तो इवन 100 में से 5 पीस चेक करेगा तो भी चलता है.
So you can write inspection 5%, 5, or you can just say 5% inspection means out of 100 you are taking 5%. ऑपरेशन नंबर 10 के बाद आप लिखो हाँ 50%, मतलब बिकॉज 50% और रादर यू से 100%, बिकॉज इसमें सब क्लोज टॉलरेंस है, बराबर है। ऑपरेशन नंबर 20 के बाद ये जो सेटअप 2 है इसमें आप लिखो कितना, उसमें भी 5% चलेगा, ठीक है। देन 30 में भी 5% चलेगा, ठीक है। एंड देन 5% का मतलब समझ रहे हैं ना, लाइक 50% मतलब 100 में से 50 चीज आपको चेक करना है, 5% मतलब 100 में से 5 चीज, दैट इज सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। एंड देन 30 के बाद आपने इंस्पेक्शन डाला 5%, देन नेक्स्ट इज 40। तो 40 में आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो ड्रिल, ड्रिल 4 होल्स, बराबर है। और अभी डायमीटर 10 वगैरह लिखने का जरूरत ही नहीं, बिकॉज एक ही तो होल है, बराबर ना, 10 डाया का। तो ड्रिल 4 होल्स लिखा, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। अगर दो एक सब जो 10 का होल है, 6 का होल है, 10 ईयर्स है, तो ड्रिल यहाँ पे लिखा आपने 4 होल, तो उसके बाजू में लिखो आप सेकेंडरी ऑपरेशन, ठीक है, सेकेंडरी ऑपरेशन वो हो गया। देन फॉलोड बाय अगेन इंस्पेक्शन। तो इसमें भी ड्रिलिंग का भी कुछ जरूरत नहीं है, तो इसमें भी आप 5% लिखेगा तो भी चलेगा। आफ्टर एवरी सेटअप, आफ्टर एवरी ऑपरेशन आप इंक्लूड करो इंस्पेक्शन। देन यू कैन से फाइनल इंस्पेक्शन। अभी ड्रिलिंग के बाद यू कैन स्ट्रेट अवे राइट फाइनल इंस्पेक्शन, final inspection. The final inspection you can have around the, you know, 25%. Final inspection में आप 25% लिख लो, and that will be supporting operation. Then you can say you can include this packaging and shipping in one box only. Packaging and shipping, that is supporting. ठीक है. Now in this component you don't have. I am just winding up because it is fast. It is time. Now I have no problem, but you have another lecture. Now this is transferring का हो गया, ठीक है। Now your next assignment is you have to carry out the classification of operation for ball fill, ठीक है। So it is very simple, ball filler का। So ball filler का you will start with forging, basic process operation, then cutting, isn't it, principal process operation, then आपका turning है, बराबर है, that is major, ठीक है। So उसमें you identify which operation is product critical, which operation is process critical, then उसके बाद it will go for the I think we are doing drilling first, then drilling के बाद that is secondary, then thread rolling. Okay, so thread rolling means you are doing it on roll, sorry, you are doing threading, so threading is on thread rolling operation. Now thread rolling will be which, whether it will be uh, uh, secondary operation or whether it will be major operation, product process, or what kind of it will be. बोलो, थ्रेड रोलिंग। थ्रेडिंग जो है ना, बॉल बिलर के ऊपर थ्रेडिंग है ना एंड में, तो दैट विल कम अंडर विच कैटेगरी? हेलो, हाँ यस सर। हाँ, थ्रेड रोलिंग, थ्रेडिंग विल कम अंडर विच कैटेगरी? बॉल पिलर का। सर वो तो प्रोसेस ये प्रोडक्ट क्रिटिकल एरिया है ना। प्रोडक्ट क्रिटिकल एरिया मतलब इट इज, प्रोडक्ट क्रिटिकल इज वेरी सिंपल, डोंट मिक्स इट। प्रोडक्ट क्रिटिकल मतलब जिधर जिधर ग्राइंडिंग है ना और जिधर जिधर कोल्ड क्लोज टॉलरेंस है, आग बंद करके वो प्रोडक्ट क्रिटिकल हो गया। पर सर वो थ्रेड के किसी अलग पार्ट में जाके बैठ जाएगा तो फिर वो कोई प्रोडक्ट का ही हाँ तो इम्पोर्टेंट फीचर है हाँ ना। हाँ या हाँ, सो बेस्ड ऑन द सरफेस फिनिश, बेस्ड ऑन द असेंबली, सो इट इज प्रोडक्ट क्रिटिकल एरिया, बराबर है। सो इट इज प्रोडक्ट क्रिटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो थ्रेडिंग हो गया, फिर उसके बाद विल गो फॉर द इंडक्शन हार्डनिंग। तो इंडक्शन हार्डनिंग इज ऑक्सिलरी ऑपरेशन, ठीक है। फिर इट कम्स फॉर द ग्राइंडिंग। अभी ग्राइंडिंग कौन सा ऑपरेशन है इसमें? प्रोडक्ट क्रिटिकल का प्रोसेस, ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्रिटिकल, बराबर ना, बिकॉज surface finish, it is going to be assembled somewhere, ठीक है। and then that's all, grinding होने के बाद हो गया। so simple, classification operation is the most simplest operation, and the weightage for this will be 4 to 7 marks. Either you will get a component you have to show, or for a short note. ओके सर। Okay, so can be done, no, this? ओके सर। Okay, so next class we'll start with the operation sheets, machining time calculations on hobbing, shaping,
branding, etc. So this it is sufficient. In this, just hold on for a minute. Uh, Here, I just forgot to tell you that combining operations. Combining operations means what? You have to combine as much of operation as possible in a particular setup. Like in this setup, we are doing this spacing, this charging, this boring, isn't it? So whatever maximum number of operations you can do, that you have to क्लब वाई बिकॉज ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक सेटअप में ये किया बाद में निकाला हाँ और बाद में वापस ये किया यहाँ से किया और बाद में वापस थर्ड सेटअप में बोरिंग किया ऐसा करने का नहीं इंसर्ट सेटअप वन में जितना हो सकता है बिकॉज वाई इन दिस वे ओनली यू कैन मेंटेन द एक्यूरेसी यू कैन मेंटेन द एक्यूरेसी दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज सर फिर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेशंस द कंबाइनिंग ऑपरेशन सर ऑपरेशंस कंबाइन के लिए एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है राइट उसका डिमेंशन कौन से बेसलाइन से दिया Yes, exactly. कहाँ से दिया है कैसा दिया है and या फिर टॉलरेंस tolerance. So based on that we select the setup बराबर ना कैसा setup करना है कैसा और वो setup पे जितना maximum अगर tolerance वाला नहीं है open भी dimension नहीं open dimension है और and if you can do that तो उसको भी खत्म करो understand ना सर रिपीट like suppose आप अभी setup 2 में see you said that based on tolerances you said बराबर बराबर ना based on tolerances ने आपने select किया कि अभी मेरा setup 1 में I want to do this करेक्ट तो यस उसमें अगर कोई भी नॉन टॉलरेंस वाला रहेगा ओपन डायमेंशन रहेगा एंड इफ इट इज पॉसिबल टू डू इट इन दैट सेटिंग देन यू डू दैट ऐसा मैं बोल अंडरस्टैंड ना हाँ So try to do maximum number of operations in a particular setup. उसके लिए वापस दूसरा setup again once again you don't do another setup for that which could have been done in the earlier setup. That is what I mean. और उसको ही हम लोग combining operations बोलते हैं. So you combine as much as possible. वैसा. और ऐसा भी है कंबाइनिंग ऑपरेशंस में बाय सिमुलेशन एंड बाय इंटीग्रेशन बाय सिमुलेशन मतलब क्या यू कैन डू वन और मोर ऑपरेशन एट द सेम टाइम मीन्स व्हाट लाइक चार होल्स है ये चार होल्स है so you can do all the four holes together are you understanding that is what is called the simulation चार ड्रिल लगा है यू हैव मेड अ ड्रिलिंग हेड उसमें चार ड्रिल लगा है एंड यू आर डूइंग द होल्स एंड अनदर इज बाय इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में कैसा रहता है दैट यू आर डूइंग वन आफ्टर अदर मतलब ड्रिलिंग फर्स्ट उसके बाद काउंटर सम और उसके बाद टैपिंग दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बाय इंटीग्रेशन हाँ ओके दैट मतलब इज सेम सेटअप में डिफरेंट ऑपरेशंस हाँ डिफरेंट है सिमुलेशन मतलब चारों होल एक साथ इसको बोलते हैं सिमुलेशन ठीक है दैट इज स्टिल बेटर लेकिन उसमें लाइक यू आर टाइटनिंग ऑल 6 bolts ऑफ अ टायर टुगेदर एक साथ आप 6 बोल्ट टाइट कर रहे हो अंडरस्टैंड नो विद द हेल्प यस ऑफ अ न्यूमेटिक रनर आजकल जो रनर आते हैं ना उसमें कैसे चारों 6 बोल्ट एक साथ टाइट होते हैं योर टाइमिंग योर प्रोडक्शन विद 6 times दैट्स ऑल इतना ही है ओके सर ओके थैंक यू सो मच आई एम सॉरी फॉर द डिले ओके सर